Well, today I'm going to talk about the key. Oh, that's good. It's going to be. Yeah, so you have a big. Oh, you are there. Oh, wow. Good evening and welcome to our devotion at 7 o'clock. Welcome, Kamil family. Thank you for being here on time. I was just lost a little bit on because today is a very important day, and I'm going to talk about the key. The key to God's blessing. It's going to be amazing, and I want you to be connected throughout the message, and I want you to get all of it. Blessings, and let's worship the Lord through our singing. God is a waymaker, miracle worker, promise keeper and light in the darkness. और हमारा परमेश्वर है जो मार्ग बनाने वाला है, चमत्कार करने वाला है और अंधेरे में ज्योति को लाने वाला है. He is a good God. वो भला परमेश्वर है. And there's nothing impossible with him. और उसके द्वारा कुछ भी कार्य असंभव नहीं है. And sometimes we wonder how are we going to move on, but God is there. God is going to bless you, and God is going to be the waymaker, miracle worker and all that you need. और कई बार हम सोच के परेशान हो जाते हैं, हम चिंतित करते हैं कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर जो मार्ग को बनाने वाला है, हमारे लिए वो चमत्कार करने वाला है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है. I promised yesterday that I'm going to give you the key
to God's blessings. और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं आप लोगों को कुंजी दूंगा परमेश्वर के आशीष के लिए। And I want you to stay on and hear the word and get the key and use the key that is going to bless your life, that is going to change your life. और आप बने रहिएगा, प्रभु के वचन को सुनिएगा और फिर परमेश्वर उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कुंजी देगा जिसके द्वारा आप एक आशीष में जीवन को जी पाएंगे। Because God has many blessings to shower upon your life. और परमेश्वर आपके जीवन में अपरंपार आशीष को बरसाना चाहता है। You know, it is in your account. और वो उसके खाते में है। Yesterday, as I told you that there is a lot of blessing in your account with God, but we have to use the right process to get in there and to receive God's blessings, and that is when God's blessings are showered upon us. और कल मैंने जैसे बताया कि आपके खाते में परमेश्वर के ओर से बहुत सारे आशीष को रखा गया है, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया को करना पड़ेगा जिसके द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। God's word is the way that we get into the presence of God. और परमेश्वर का वचन वो मार्ग है जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें ले जाता है। And today I would like to talk to you about that particular word abide. और आज मैं उस शब्द बने रहो उस शब्द के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Because in John chapter 15 verse 7, that word or that chapter that word abide is repeated at least 8 times. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 7वें पद में और 8 से भी ज्यादा बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, बने रहो। And when God repeatedly say a word, God wants our complete attention to that. और एक ही वचन को जब परमेश्वर बार बार कहता है उसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस शब्द पर उस वचन पर हम बहुत ज्यादा ध्यान दें। Please remember that God is the creator and He has all the blessing that you and I need in our life in abundance. और एक बात को आप स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर जो कि सृष्टि करता है उसके पास सारी आशीष है मेरे लिए और आपके लिए जिसने वो हमारे लिए रखा है। And God is giving us the key in these words. और फिर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कुंजी को देता है। John chapter 15 verse 7 says, और यूहन्ना 15 के 7 में इस प्रकार से लिखा है, If you abide in me, God says, if you, I and you abide in God, if you abide in me. और यहाँ पर प्रभु यीशु से कहता है यदि मैं और आप उस पर बने रहते हैं And my words abide in you. और मेरा वचन तुम में बना रहता है, Ask whatever you wish. तो जो चाहो तुम मांगो, It will be done for you. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। I mean, this is a big offer. और ये बहुत बड़ा एक ऑफर है। This is not like the offer that we get from Big Bazaar or any of those, but this is the best offer, I would say. और ये ऐसा ऑफर नहीं है जो संसार में हमें मिलता है जैसे बिग बाजार वगैरह में जाते हैं, ये वैसा ऑफर नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ ये सबसे बड़ा ऑफर है जो हम कहीं पर भी नहीं पाते। God says, if you abide in me or if I and you abide in God. और यहाँ पर प्रवेश में से कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे, यदि मैं और आप उसमें बने रहते हैं, and God's word abide in us, और परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है, whatever we ask, God is going to do it for us. और जो भी हम चाहे वो मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। Yesterday I told you that this word abide is in a present imperfect word. It's a continuous. It talks about continuous action. और कल के दिन मैंने बताया कि ये जो बने रहो जो शब्द हैं वो एक निरंतर होने वाली क्रिया है। It is not something you start abiding and you stop abiding. It's something that has to be a continuous form. और ये शब्द ऐसे नहीं है कि हम बने थे और उसके बाद अभी नहीं है, ऐसे नहीं, लेकिन ये निरंतर हमारे जीवन में होने वाली एक प्रक्रिया है। So in this offer, God said, "Abide in me, I abide in you." और इस ऑफर पे परमेश्वर से कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुझ में बना रहूंगा। And my word abide in us. God's word abide in us. और परमेश्वर का वचन हम में बना रहे। So what does it mean by abide? और इसका अर्थ क्या है कि बने रहने का? See, yesterday I told you that scripture, according to the Jewish tradition, scripture has many meaning.
और जैसे मैंने कल बोला कि यहूदियों के जो उस परंपरा के अनुसार वो जो वचन होता है उसके काफी अर्थ होते हैं. They say it's a kaleidoscopic. You remember us growing up as children, we used to get the kaleidoscopic, that toy that used to, and you put one object there, it gives different colors to that. और आप सब जानते होंगे एक उपकरण इस प्रकार हमारे बचपन में होता था जिसको हम अपने आंखों में रखते थे और कुछ चीज हम डालते हैं और उसको घुमाते हैं तो कई अलग अलग रंग दिखता है. So in the same manner, one word has different meanings. और उसी प्रकार से एक ही शब्द का कई अर्थ दिया गया है. And we must understand this word abide, because God said if we abide in Him and if God's word abide in us, then whatever we can ask and God is going to do it. So we need to understand the word meaning of abide. What does it mean? और इसलिए हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि इस शब्द का अर्थ को समझना कि बने रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुझ में बना रहूंगा और मेरा वचन तुम में बना रहेगा. I want to give you 5 reflections of that. और उसके लिए मैं आप लोगों को 5 रिफ्लेक्शन को देना चाहता So the हूँ. first one is to stay overnight. और पहला जो उस शब्द का अर्थ है कि रात भर जागना. Abide means to stay overnight. और जो बने रहने का अर्थ है कि रात भर जागना. Remember, before Jesus was betrayed and taken and crucified, the night before that, Jesus stayed overnight in prayer. और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने के पहले उस पहले रात को प्रभु यीशु मसीह पूरी रात भर वो जगे रहे. See, sometimes we need to press into the presence of God longer. और कई बार ऐसा होता है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में काफी लंबे समय तक उसकी उपस्थिति में बैठे रहना पड़ता है. If we remain in the presence of God, God's presence will remain in us. और यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहेगा. Every extra effort that you take in the presence of God, God always responds with extra blessing. और फिर जितना भी आप ज्यादा कार्य परमेश्वर के लिए करते हैं उतना ही ज्यादा कार्य प्रभु हमारे लिए भी करेगा. God uses the most people who spend more time in His presence. और परमेश्वर उन लोगों पर ज्यादा भरोसा रख सकता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय को व्यतीत करता है. Because they are the ones that God can trust more. और परमेश्वर ऐसे लोगों पर ज्यादा भरोसा रख सकता है. So when God says abide in me, और जब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो and let my word abide in you, और मेरा वचन तुम में बना रहे, what He says that press on to the presence of God. और ये क्या बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें. Like Jesus spent the whole night. और जैसे प्रभु यीशु मसीह पूरी रात अपने समय को वहाँ व्यतीत किया. Even the Bible talks about Jesus spending all night in the presence of God. और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी रात परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताया. So that God's presence will abide in us. ताकि परमेश्वर का वचन हम में बने रहे. And the second word meaning of abide और is दूसरा जो बने रहने का शब्द का अर्थ है to hold fast. और बड़े मजबूती के साथ पकड़े रखना. To hold fast. और बड़े मजबूती के साथ थामे रहना. See, every time we spend time in prayer, in the spiritual realm, we get into a higher position. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर हम रहते हैं तो हमारी जो आत्मिक स्तर हो जाती है वो आगे बढ़ते जाती है. And the kingdom of God is advanced, and the forces of darkness will retreat when we spend more time in the presence of God. और जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं तो क्या होता है कि जो परमेश्वर का राज्य है वो आगे की ओर बढ़ता है और वहां से पूरा अंधकार अपने हटने लग जाती है. And when we spend time in the presence of God, the most effective weapon is the word of God. और हम जब परमेश्वर के समय को व्यतीत करते हैं तो उस समय सबसे बड़ा हथियार होता है वो परमेश्वर का वचन होता है. Remember Jesus, when Satan tempted Jesus,
that was the weapon that Jesus used against Satan. और आप सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान आया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन का इस्तेमाल किया उसको पराजित करने के लिए। So by abiding in the word of God और परमेश्वर के वचन में बने रहने का and holding fast to the word of God, और परमेश्वर के जो वचन को थामे रहने के लिए in the spiritual realm we take over the enemy's territory. और हम क्या करते हैं जो शैतान की जो सीमा है उसको हम उसके आगे जाते हैं। You know it's a spiritual war, it's a warfare. और आप सब जानते हैं कि ये एक आत्मिक युद्ध है। So in the spiritual warfare it's important for every child of God to take your position and take over the territory of the kingdom of darkness that God's kingdom can advance. और हम परमेश्वर के संतान होने के कारण हम जानते हैं कि एक आत्मिक युद्ध है और जब हम इस हथियार को ले लेते हैं हम तैयारी में रहना चाहिए कि जैसी ये घोषणा होती है हमें आगे जाना है उस अंधकार की सामर्थ से लड़ने के लिए और हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। And the enemy will always tries to come back. He'll try to come back and take back what he lost. But if you abide in the word of God, God will strengthen you in the spiritual realm to hold on to what you gained and hold fast what you have gained and continue to advance the kingdom of God against the spiritual darkness. और फिर शैतान तो शत्रु जरूर कोशिश करेगा वापस आकर उसका जो सामान है उसको लेने के लिए उसको कब्जा करने के लिए, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जो हथियार के रूप में वो हमारे अंदर बना रहता है तो हम क्या करते हैं उस शत्रु के उस पाथी को उस अंधकार के सामर्थ को जो उस आत्मिक सर पर होती है वो आगे बढ़कर उस शत्रु को पराजित कर देती है। Hallelujah. Hallelujah. God's word is the best offense and it is the best defense. और परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा आक्रमण करने का और फिर हमारी सुरक्षा करने का साधन है। So we are trying to understand the word meaning of abide. और अभी हम समझ रहे हैं कि जो बने रहने शब्द का अर्थ क्या है। It is important to understand it because Jesus said, if you abide in me and my word abide in us, ask whatever God will give to us. और हमें इस बने रहने शब्द का अर्थ को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। See, yesterday I said we all love that second part of that verse. I would say that's the best part. Ask anything you wish, you will get it. What a great verse. और हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं इस वचन के दूसरे भाग को क्योंकि कितना अच्छा वचन है। वो कहता है कि जो भी तुम्हें चाहे मांगो मैं तुझे दे दूंगा। But that comes with a condition. लेकिन वो वचन आता है एक शर्त के That साथ। verse begins with, if you abide in me and my words abide in you. और वो वचन शुरू होता है यदि शब्द से, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तब तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Remember, I am giving you the key. और स्मरण रखिएगा मैं आप लोगों को कुंजी दे रहा हूँ। This is the key. और ये कुंजी है। So abide in God and our God's word abide in us. और ये कुंजी है कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहना और प्रभु का वचन हम में बने रहना। So which means that to stay overnight and to press into the presence of God longer and longer. और इस शब्द का अर्थ है कि रात भर बने रहना और लंबे समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, जितना ज्यादा लंबा समय हो हम उसकी उपस्थिति में बने रहना। And to hold fast to the word of God. और फिर परमेश्वर के वचन को बड़े जोर के साथ थामे रहना। And the third meaning of abide is to stand still. और तीसरा जो बने रहने का अर्थ है उत्साह के साथ खड़े रहना। Stand still. स्थिर खड़े रहना। उत्साह के साथ स्थिर खड़े रहना। Yeah, so stand still is the time when you remember the people of Israel, they were between the Red Sea and the Egyptian army. और आप लोग इसको जानते हैं कि जब इजराइल के लोग के आगे लाल समुद्र था और पीछे मिस्री सेना थी। The Lord spoke to Moses. परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। They were in a fix. और वो लोग वहाँ पे उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो तो खड़े थे। Can you imagine Red Sea in front of them and Egyptian army behind them? और क्या हम कल्पना कर सकते कि उनके आगे लाल समुद्र और पीछे मिस्री सेना? They cannot go back. वो पीछे नहीं जा सकते। They cannot move forward. और वो आगे नहीं बढ़ सकते। They cannot go to the side. और वो किनारे नहीं जा सकते। They are in a fix. और वो वहीं पर थम गए। Sometimes we also get situations like this. और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती हैं। But that is when God speak His word. और उस समय होता है कि परमेश्वर अपने वचन को कहता है।
है। And that is when God spoke to Moses. और उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, He said to Moses, fear ye not, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मत डर stand still और स्थिर खड़े हो जा, and see the salvation of the Lord. और परमेश्वर की ओर से तू छुटकारा को देखना। See, when we find ourselves between the rock and hard situations, और जब हम अपने आप को पाते हैं कि चट्टान जैसी अवस्था और एक मुश्किल घड़ी के बीच में, we must stand on the promise and the word of God. तब हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन और उसके वायदे पे हमें स्थिर खड़े होना See, है। some problems we cannot solve. और कुछ विषय ऐसे थे जिसका हम समाधान नहीं कर I सकते, and you don't have the solution for it. और उसके लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं है। We are in a situation like that now, lockdown. और हम ऐसी परिस्थिति में इन दिनों में जब हमारे लॉकडाउन, हम घर के अंदर बंद हैं And corona all around. और चारों तरफ कोरोना फैला हुआ We है, have no solution. हमारे पास इसके लिए कोई उत्तर समाधान नहीं Doctors है। have no solution. डॉक्टरों के पास कोई समाधान नहीं Science है, has no solution. विज्ञान के पास कोई उत्तर The नहीं world है, is stuck. और वो जो संसार है थम सा गया But है। there is a place that we can stand. और लेकिन ये एक स्थान है जहाँ पे हम खड़े हो सकते We हैं, can stand on the word of God. और हम खड़े Hallelujah. हो सकते हैं परमेश्वर के वचन We में, can stand on the promises of God. और परमेश्वर के वायदे में हम खड़े हो सकते We हैं। cannot change the situation. हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते, At times like this, we get panicked. We are anxious and we get concerned. और ऐसी परिस्थिति में हम व्याकुल हो जाते, परेशान हो जाते, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। And I would say the Bible says that stand still and know the deliverance of the Lord. और लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाइबल बताती है कि स्थिर रह के परमेश्वर के छुटकारे के लिए इंतजार करो। See, nobody likes to be in a situation like this. और कोई नहीं चाहता इस प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आए, But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता through हूँ the history, और इतिहास में, through the Bible, पूरे बाइबल में, the most dramatic miracles happened in situations like this. और सबसे बड़ा जो चमत्कार ऐसे समय पर हुआ जब इस प्रकार की परिस्थितियां सामने आई। Jesus said, यीशु ने कहा, abide in me, मुझ पे बने रहो and my words abide in you. और मेरा वचन तुम में बना रहे, Ask whatever. और तुम जो मांगोगे, And this is the time. और ये है समय, We need to stand still और हमें स्थिर खड़े होना है on the word of God परमेश्वर के वचन and में, the promises of God. परमेश्वर के वचन के And वायदों we में, need to abide in Him. और हम उसमें बने रहने के And लिए। the fourth one और चौथी बात है, is the word meaning abide is to be moved. और चौथा जो बात है कि उत्साह के साथ आगे Yeah, to बढ़ना, be moved. और उत्साह के साथ। Well, Prophet Haggai writes in Haggai chapter 1 verse 14. और भविष्यवक्ता हग्गे जो कि उसके पहला के 14 में इस प्रकार से लिखता And है, it says that the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. और फिर यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जो जरुब्बाबिल के वहां पे जाती है, He was stirred up, the spirit stirred him up, and the spirit of God got into his spirit. और वहां पे इस प्रकार से कहते देखा गया कि तब परमेश्वर की आत्मा उत्साह से भर के उसके पास आया। Remember, when God's word abide in us, और याद रखिए कि जब परमेश्वर का जो वचन हमारे अंदर बनता God's है, word gets into our spirit. और वो हमारी जो आत्मा के अंदर जब आता है, And our spirit is the spiritual womb. और हमारी जो आत्मा के जो गर्भ है, And when God's word gets into our spirit, और जब परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा में आती है, we get conceived with a new passion for God. और हम जो गर्भ धारण करते हैं एक नए जोश के साथ, And now inaction is no longer an option. और उसके बाद जो है कि कार्य बहुत बड़ा एक उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। We cannot just stay not doing anything. God would strengthen us, and the Spirit of God would enable us to move on, to act something, do something. और जब परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा के अंदर गर्भ को धारण करता है तो हम रुक नहीं पाते हैं, हमारे अंदर ऐसे कोई भी बातें नहीं आती कि हम रुक कर करें, लेकिन वो हमें एक हमें जोश लाता है कि हम उसके लिए जल्दी से कार्य को We करें, cannot be in the sideline. और हम किनारे नहीं हो जाते हैं। Remember David? और दाऊद को He देखिए, had God's word in him. और उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, God's word was in his spirit. और परमेश्वर की वचन उसके आत्मा में था। So when Goliath was shouting from there, और जब गोलियत वहां से ललकार रहा था, he could not stay quiet and by the side of the army or among other people, और वो खामोश नहीं रहा अन्य सैनिकों के साथ, because he was abiding in the word of God. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बना हुआ था। God's word was abiding in him. परमेश्वर का वचन उसमें बना था। And then he said, I will
go and fight against the giant. तब उसने कहा कि मैं जाके लड़ाई करूंगा उस दानव के विरोध Because में, God's word was in him. क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर God's था, promises was in him. परमेश्वर का वचन का वायदा उसके अंदर See, when था। God's word is in us, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता we है are going to look for giants to conquer. और हम जो दानों को देखते हैं और हम जय को प्राप्त करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You know, the giants will come in life and we will look for giants as David. We will run to the front line and we will take over the giant because God's word is in us. और हमारे जीवन में दानों जैसे परिस्थिति आएगी, लेकिन हम दाऊद के समय समान हम क्या करते हैं, हम भी एकदम जोश के साथ एकदम से आगे जाते हैं और उस दानों को हम हरा देते हैं। So we are trying to understand the word meaning of abide. और अभी हम समझ रहे हैं कि बने रहने शब्द का अर्थ। I'm giving you five meanings of that, मैं 5 अर्थ को बता रहा हूँ and it's going to change your life. और ये आपके जीवन को बदल देगा। First of all, to stay overnight. और सबसे पहली बात है कि पूरी रात भर लंबे समय तक बने रहना। That means stay longer, press longer into the presence of और God. जिसका अर्थ है कि हमें बहुत लंबे समय तक उसकी उपस्थिति में बने रहना। And hold fast. और दूसरा है कि हमें उसको बहुत मजबूती के साथ थामे To रहना stand still. और फिर हमें स्थिरता के साथ खड़े रहना And to है move with passion. और फिर उत्साह के साथ हमें बढ़ना All this है। happens when God's word is in our hearts. और जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल में होता है। And the last one is to tarry. और फिर जो 5वां जो शब्द है To tarry in the jarka. इंतजार करना। So this is what Jesus told his disciples और यही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा before his ascension. और अपने स्वर्गारोहण के पहले। And they tarried in the upper room for 10 days. I spoke to you on that. और वो लोग 10 दिन तक उस ऊपरी कोठी पर इंतजार किए, मैंने जैसे आप लोगों को बताया So पहले। when we are in the presence of God, और जब हम उसकी उपस्थिति में होते we हैं, meditate the word of God. हम परमेश्वर के वचन का मनन करते See, हैं। prayer and meditation of the God's word are not two different things. One is the key to the other. और फिर प्रार्थना करना और वचन का मनन करना ये दो अलग नहीं है, लेकिन ये दोनों है परमेश्वर की उपस्थिति में। And when the disciples, they meditated upon and spent time in prayer and God's word, and that brought a great revival. और जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने परमेश्वर के वचन को मनन करने लगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा एक परमेश्वर का कार्य उन्होंने देखा। So God's word is very important. परमेश्वर का वचन बहुत ही जरूरी है। See, the Jewish kings, they used to write the law of God in their own handwriting and carried it and read it every day. और यहूदी राजा लोग क्या करते थे, उनकी जो भी व्यवस्था जो कानून होता था वो लोग अपने हाथों से लिखते थे और उसको हमेशा अपने साथ रखते थे, Because this is very important for them. क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही जरूरी था। So dear child of God, और इसलिए प्रभु के संतान हो, God's word, let's get God's word into our hearts. और परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर आने दे। God's word, meditate, memorize the word of God and meditate the word of God. और होने दे कि हम परमेश्वर के वचन को याद करने वाले और मनन करने वाले हो जाएं। And personalize the word of God. और फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन को अपने व्यक्ति के जीवन में लागू करने When वाले you हो read the जाएं। word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, put your name wherever the word you is used, put your name there. और तो आप क्या करेंगे, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं और जहाँ कहीं भी तो तुम शब्द का या तू शब्द का प्रयोग किया, वहाँ पे हम अपने स्वयं के नाम को रखें Personalize it. और अपने व्यक्तिगत हम उसको अपनाएं। Deuteronomy 28 talks about God's blessings. और व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर के जो आशीष के बारे में लिखा गया है। It says, if it shall come to pass, if Koshi diligently obey the voice of the Lord your God. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि तुम बड़ी सावधानी के साथ मेरी बातों को मानोगे तो जॉय से ये जो वचन तेरे लिए है। So wherever the word you is there, put your name. और जहाँ कहीं भी तुम शब्द का प्रयोग किया गया, वहाँ पे हम अपने नाम को रखें। Says, and all these blessings shall come upon Koshi and overtake Koshi, because Koshi obey the voice of the Lord your God. Voice is God. और यदि जोइसी तू ऐसे करेगी तो जो भी आशीष मैंने जोइसी के लिए रखा है वो तुझे मिलेगा। Personalize the word of God. और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको अमल करें। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Meditate the word of God. परमेश्वर के वचन को मनन करें। Abide in the word of God. परमेश्वर के वचन में बने रहें। May the Lord richly bless you. और परमेश्वर को बहुत ऐसा आशीष को दे। And now you got the key. और यदि अब आपको कुंजी मिल चुका You है, can share it to other people also. आप दूसरों को भी बता सकते It's the हैं। key of God's blessings. और ये परमेश्वर के वचन की कुंजी है, Don't miss it. इसको ना खोएं। Always abide in the word of God. और हमेशा परमेश्वर के वचन में बने Let रहें। God's word abide in us. और परमेश्वर का वचन हम में बने रहे। Whatever you ask, और आप जो भी मांगेंगे God will give it to वो you. परमेश्वर आपको It's देगा। a promise of ये God. परमेश्वर का वायदा
होता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ. Let this be our prayer. और ये हमारी प्रार्थना हो जाने दे। Lord, I surrender my life to you. और मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण I करता हूँ। surrender everything that I have to you, O God. और मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करूंगा। Take my life, मेरे जीवन को तू ले ले, use my life. मेरे जीवन की इस्तेमाल Help कर me to read your word और मुझे सामने तेरे वचन को पढ़ने के and लिए help me to personalize your word. और मुझे मदद करे कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तेरे वचन को अमल करने पाऊँ। We want to pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता Now हूँ we have some prayer requests that has come. और कुछ प्रार्थना के निवेदन हमारे पास आए हुए And हैं we are going to pray for Rajni Thomas for her children also. और अभी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे बहन रजनी थॉमस और उनके बच्चों के लिए। We are going to pray for Aman Kumar and his mother. और अभी हम प्रार्थना करें अमन कुमार और उसकी मम्मी के लिए And Sister Ria William for healing. और रिया विलियम की पूरी चंगाई के लिए हम प्रार्थना There are करें। many requests that are coming online. और ऑनलाइन में हमारे पास कई प्रार्थना के निवेदन आ रहे हैं We are going to unite our hearts and pray for these needs. और हम अपने दिलों को एक साथ जोड़ के इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना If you करें। have a need, you can write to us. और यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय आप हमें लिख सकते हैं। And also, I want all of you to, read your Bibles. और मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग सब अपनी बाइबल को जरूर Read पढ़ें, your Bible. अपनी बाइबल को पढ़ें। And it is going to take your life much longer, and it's going to bless your life and meet many of the needs through the Word of God. और ये जो आप ऐसे करने से आपके जीवन को बहुत लंबे समय तक बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, we come before your throne of grace. प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर हम तेरे दया के सिंहासन के तले आते हैं। We thank you, O God, for ministering to our hearts and giving us the importance of your word. और धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के द्वारा तुमसे बातें करने के लिए और उसके महत्व को हमें समझाने के So लिए। at this time, I pray for your people. और इस समय मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता I हूँ। pray wherever they are, let your presence come down upon them and bless them right now. और मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ कहीं भी वे लोग हैं वहाँ पर तेरी उपस्थिति उतर जाए और उन सबको तू आशीष दे। Lord, we pray for Sister Rajni Thomas and her children. और अभी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं बहन रजनी थॉमस उनके बच्चों के लिए। I pray for your blessings upon them. और हम प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष उनके पर आ जाने We दे। pray for Aman Kumar and his mother, O God. और अभी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं भाई अमन कुमार के लिए उनकी माता के We लिए। pray for a blessing upon that family. और हम प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष उस परिवार में आ जाने We दे। pray for Ria William, Lord, and for healing of your child's life. और अभी हम प्रार्थना करते हैं रिया विलियम के लिए उसकी पूरी चंगाई के लिए। And all the prayer needs that are there, we pray for each and every one of them. और जितने भी प्रार्थना के विषय पर जो सारे विषयों के लिए तेरे हाथों में रखते हैं। Jesus, I pray that you would meet all their needs. और हम प्रवेश में से हम प्रार्थना करते हैं आप उन सब की जरूरत को पूरा कर। Bless us together. हम सबको एक साथ आशीष We दे। give you the glory. हम तुझे महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम And all of से। us together say, और हम एक साथ मिलके कहें Amen, Amen, Amen. God
each one of you. परमेश्वर आप सबको बहुत टाइम से And आशीष tomorrow we are going to come back again at 7 o'clock. और कल हम फिर दोबारा मिलेंगे ठीक 7 I'm बजे। excited about it. God bless you. Thank you. और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ आप लोग से मिलने के लिए।